Narayan. In this video, I will discuss one of the favorite subjects of all of us, perhaps the entire world, and this is called as intelligence. We all seek intelligence. We all want to be intelligent, the most intelligent. We want the best of knowledge, unsullied, unpurified, absolute knowledge, and we want to retain that knowledge forever. And we want that knowledge to serve us, to help us in acquiring all the objects of our desires. So, this kind of knowledge is the most sought after by all of us, all creatures. Even animals seek intelligence, they want their objects of desire. So, they also act, and act they must only after they gain some intelligence, because when we act, it is intelligence in action. If you can see that if I go somewhere to a place, how I go there, how much I am able to avoid the obstacles in that way determines my intelligence. So, in that small term and in a larger measure, if you see that there are a lot of people in this world who are trying to achieve their individual objects. So, are they able to achieve them, or they give up, or are they able to achieve only a part of it? So, this disparity in outcomes also can be said to be a determinant of the disparity in the measure of intelligence. Intelligence is so important. And this particular subject I've taken from Valmiki Ramayana. Yes, it's one of the favorite epics, and it has a plethora of knowledge of such subtle truths about our life. So, when Sugriv has dispatched 4 different lots of monkeys to all 4 directions in search of Bhagavati Sita, Hanuman, Angad, and all the other monkey chiefs are sent to the south region to search for Bhagavati Sita, and they fail their attempt and they are unable to find Sita, and they sit there dejected, little closer to the southern shore, and they contemplate on what is to be done now. So many of the monkeys are very fearful of going back to Sugriv, because they have crossed the limit that Sugriv had given them of 1 month, and they have surpassed 1 month and they have been unable to find Sita. So many of them are afraid to go back, because they know that Sugriv is very irascible, and then he can even kill them. So even Angad is of the same opinion that we can sit here, we can fast until death, and we can have a happy afterlife. So we are saved from Sugriv's wrath, Sri Rama's wrath. And Hanuman is the one who is of a different opinion. He is always in the he wants to, he is a proponent of exertion, he's a proponent of promptitude. So he sees all of the monkeys, they who give their expressions, who vent their lamentations about that failure, their ill fortune. And Hanuman is able to identify Angad as the chief of all the monkeys, and he identifies that Angad is bestowed with the 8 virtues that characterize intelligence. He also is equipped with the knowledge of the fourfold policies and the 14 excellences that makes a complete man. So these are the forms that our scriptures teach us, and I'm going to talk about the 8 virtues that characterizes intelligence. What is intelligence? How do you identify and establish a conclusion that you or somebody else is really intelligent? ये जो मैंने प्रश्न इस बार मैंने लिया है वह वाल्मीकि रामायण का है। प्रश्न नहीं है, एक हनुमान का एक ऑब्जर्वेशन है अंगद के जीवन को लेकर। और सुग्रीव जब चारों दिशाओं में वानर सेना को भेजते हैं और दक्षिण दिशा में वह अंगद को मुख्य चीफ बनाकर, सेनापति बनाकर भेजते हैं, जिसमें हनुमान भी है, जामवंत भी है, तारा है, बहुत सारे वानर हैं। और बहुत ढूंढने के बाद भी उनको भगवती सीता प्राप्त नहीं होती है, कुछ अता पता नहीं मिलता है, और सब लोग बहुत ही हताश हो जाते हैं, बैठे हैं। और समुद्र किनारे से थोड़े ही भीतर अंदर वो बैठे हैं, एक गुफा में, गुफा के बाहर ही बैठे हैं, और
एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं कि क्या किया जाए। और ये जो हनुमान का जो दृष्टिकोण है, उन्होंने जो देखा है अंगद के भीतर, वह है ज्ञान को लेकर, बुद्धिमत्ता को लेकर। ज्ञान एक ऐसा तत्व है जो हम सभी को सबसे प्रिय है, सभी को सब कुछ चाहिए, हम सभी को सब ज्ञान चाहिए, पूर्ण ज्ञान चाहिए, ऐसा ज्ञान चाहिए जो सदा सदा के लिए रहे। और वह ज्ञान, ऐसा ज्ञान चाहिए जो ज्ञान हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाता ही रहे, हमारी अलग अलग इच्छाएं हैं वो पूर्ति हो सके उनकी, ऐसा ज्ञान हम सभी को चाहिए, हम सभी को उसकी लालसा होती है। मगर फिर ज्ञान को फिर साइड में रख के बहुत मनुष्य जो नियंत्रण में नहीं रह पाता है, वह इंद्रिय के चपेट में आकर फिर असत्य का मार्ग लेकर फिर अपना गंतव्य प्राप्त कर लेते हैं। फिर वो थोड़े समय बाद वो फिर से चला जाता है, क्योंकि अधर्म से आया हुआ है और उनकी सुमति नहीं बनती, उनकी कुमति बनती है। तो ज्ञान आते आते फिर रह जाता है और फिर दूर चला जाता है। ज्ञान आना वो बहुत ही बड़ी बात है। ज्ञान अपने आप भी हम सभी में आता है, और इसके लिए हम सभी को अपने अपने अंदर ऐसी पात्रता उद्दीप करनी है, ऐसी डेवलप करनी है कि हम ज्ञान ग्रहण करने के पात्र बने। और ऐसा ज्ञान जो सूक्ष्म ज्ञान हो, धर्म का ज्ञान हो, ब्रह्म का ज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो। तो वैसा ज्ञान अगर हम में आए तो हम वह ज्ञान को उपभोग नहीं मगर उपयोग करके हम हमारा भी कल्याण करें और दूसरों का भी कल्याण करें। और ऐसा ही ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान कहा जाता है। वह ज्ञान कुछ काम का ही नहीं है जो हम हमारे लिए ही उपयोग करें। वह ज्ञान क्या काम का, वह तो पशुओं की भांति हो गया। पशु भी अपने लिए ही जीते हैं, तो अगर मनुष्य भी अपने लिए जीने लगे तो फिर कुछ तथ्य ही नहीं रहेगा मनुष्य जीवन, मनुष्य योनि में जन्म लेने का। तो हम सभी को ऐसा ज्ञान चाहिए जो हमारे भिन्न भिन्न गंतव्यों तक पहुंचाए और सभी का कल्याण करे, और एक दूसरे के साथ हम परस्पर मिलजुल के रहे और जीवन व्यापन करें, और सुसंस्कृत और सुसज्जित और सुलक्षणा हम सब बने। हम सभी में सुलक्षण आए, सुमति आए, ऐसा ज्ञान हम सभी को चाहिए, ऐसी इच्छा सभी की होती है। तो ये जो हनुमान का जो ऑब्जर्वेशन है अंगद के भीतर, ये वो ज्ञान को दर्शित करता है। सब वानर सेना बैठे हैं और तारा, अंगद और बाकी सब इत्यादि बहुत सारे हैं जो बैठे हैं, जो अपना अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं कि अभी क्या किया जाए। और बहुत सारे वानर कह रहे हैं कि अभी 1 महीने का जो सीमा रखी थी सुग्रीव ने, जो उनके पति सेनापति है, जो उनके मास्टर है, तो उन्होंने 1 महीने की सीमा रखी थी, 1 महीने के भीतर ही आपको ढूंढ के आना है पूरा दक्षिण क्षेत्र। और वह सीमा उन्होंने लांघ दी, 1 महीना बीत चुका और उसके बाद भी वह वहां पर है, और फिर भी भगवती सीता का कुछ अता पता नहीं है, कुछ संकेत भी नहीं है। तो सभी हताश हो जाते हैं और वहां पर बैठे हुए होते हैं, और सभी वानर कह रहे हैं कि हम अभी अगर सुग्रीव के पास जाएंगे तो वो बहुत ही क्रोधित है, क्रोधित होते भी है और हम सबको मार डालेंगे, तो हम वहां पर नहीं जाएंगे। अगर ऐसी दशा में अगर हम जहां पर हमें विजय प्राप्त करनी थी हम पराजित हो गए और ऐसे मुंह लेके हम जाएंगे तो हमको मार ही डालेंगे, और श्री राम भी क्रोधित हो जाएंगे अगर अपनी पत्नी वियोग में, तो वो भी हमें मार देंगे। तो उचित है कि हम वहां पर जाए ही नहीं, हम यहीं यहीं रहकर हम व्रत का पालन करें, निर्जला व्रत रख ले और मृत्यु तक निर्जला ही रहे, और मृत्यु मृत्यु हमारी यहीं आ जाए, ताकि हमारा अगला जन्म तो अच्छा हो, तो कुछ अच्छे कार्य में हमने मृत्यु प्राप्त की। सभी का ये कहना होता है, और थोड़े बहुत कहते हैं कि नहीं नहीं हमें और जाके ढूंढना चाहिए। कोई लोग कहते हैं कि नहीं हमें वन में ही रहना चाहिए, विचरण करेंगे, खाएंगे और आनंद से रहेंगे, मगर लौटेंगे नहीं। और हनुमान ये सब देख रहे होते हैं, और हनुमान अंगद को खास करके देख रहे होते हैं, और उनकी दृष्टि उन पर ही होती है, और वह उनको देखते हैं और वह मनोमन सोचते हैं। वह यहाँ पर ऋषि वाल्मीकि ने लिखा है, वह हनुमान की जो सोच है, मन की सोच ही यहाँ पर दर्शित की गई है। तो हनुमान अंगद को देखते हुए ये कहते हैं कि अंगद में ऐसे 8 प्रकार के गुण हैं
जिसको जिससे बुद्धिमत्ता, जिससे हमें ज्ञान कहा जाता है, ज्ञान परिपक्व हो, ऐसा ऐसी 8 प्रकार के गुण उसमें है, जिसको पूर्ण परिपक्व ज्ञान कहा जा सकता है। और फिर उसमें वो ज्ञान भी है जो 4 पॉलिसीज होती है, साम दाम दंड भेद, वो उसको कैसे क्रियान्वित करना है, कौन से समय, कौन से स्थान पर, किस प्रकार शत्रु के सामने, वो सब भी उसको ज्ञात है अंगद को। और 14 गुण और अधिक गुण हैं जो और तत्व ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे 14 और ये 8 और ये 4 पॉलिसी, ये सभी का एक कॉम्प्रिहेंसिव आप देखें कि पूरा मिलाकर पूरा ज्ञान की टोपली आप कहे, वो पूरी अंगद के भीतर है। अगर हमें यहाँ पर ये भी समझना चाहिए कि अगर हनुमान ने अंगद के भीतर ये सभी देखा है, तो हनुमान में तो वो पहले से ही है, और उसमें तो पहले से ही है, क्योंकि वो वायुदेव, स्वयं वायुदेव के पुत्र है, उसमें तो होना ही है। और वह देख रहे हैं और वह ये प्रदर्शित कर रहे हैं, तो हनुमान में तो ये पहले से ही है, मगर वो कह रहे हैं कि अंगद में भी ये सारे गुण हैं, सारी क्वालिटीज है, जिससे वह किष्किंधा राजा सुग्रीव को हटाकर स्वयं भी राजगद्दी पर बैठने के योग्य है। इतने युवान है फिर भी वह योग्य है। तो ये जो 8 वर्च्यूज दैट कॉन्स्टिट्यूट इंटेलिजेंस, 8 जो गुण है वह बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करते हैं, वह कौन से है वह हनुमान देखते हैं। तो पहला उसमें है शुश्रूषा। हमें जब हम किसी से संवाद करते हैं, तो हमें पहले सामने वाला क्या कहने वाला है उसको सुनने की इच्छा, सही में इच्छा, हृदय से इच्छा हो कि मैं सामने वाले को सुनूं ध्यान पूर्वक, ये इच्छा, इसको कहते हैं शुश्रूषा। तो ये इच्छा रखना कि सामने वाला क्या कह रहा है, उसको सुनने की इच्छा, ये पहला गुण है। दूसरा गुण है एक्चुअली लिसनिंग, हमें सही में उनको सुनना। अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको सुनना ही कहा है। तो यहाँ पर अगर हम किसी के सामने बैठे हैं, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो हम सुन रहे हैं, हमें सुनने का दिखावा नहीं, यहाँ पर दिखावा नहीं है। बहुत जन, अधिकतम लोग तो दिखावा ही करते हैं। और सुनना माने संपूर्ण रूप से सुनना, और उस समय हमें ना तो कुछ बोलना है, बोलना तो दूर की बात है, नहीं बोलना है, मगर मन को भी मौन रखना है। मन में भी कुछ विचार ना आए उनको सुनने के बाद कि आप प्रत्युत्तर क्या देंगे, वो भी नहीं आना चाहिए। केवल और केवल अपनी इंद्रिय, कान की इंद्रिय, उसके माध्यम से आपको सुनना, सुनना और सुनना, केवल और केवल शांत रहकर सुनना। उसके बाद आता है, ये पहला हो गया कि इच्छा रखना, दूसरा आता है सुनना, और तीसरा आता है वह जो कह रहा है उसका भावार्थ समझना, कि वह क्या कह रहे हैं उसको समझना। तो अगर हम शब्दों को समझ बराबर समझे कि शब्दों का अर्थ क्या होता है, वह क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी पीड़ा क्या है, उनके भाव कैसे हैं, वह कुछ कहेंगे, वह शब्द कहेंगे, शब्दों का मेल हम मिलाकर अगर हम सोचेंगे तो फिर वो क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं वो हमें जानना, समझना। चौथा होता है धारण करना, जो उन्होंने पहले कहा है उसके इसके पहले आता है श्रवण, श्रवण करना है, और फिर उसके बाद धारण करना। धारण माने हमें अपने भीतर ही हृदय में उनको धारण करके रखना है, कि हमने जो सुना है वह भीतर में रखना है ऐसे ही, ताकि वो हमें आगे जाके काम आए। क्योंकि वह अगर प्रत्युत्तर देना है तो हमको हमको ज्ञात होना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है, और हम जब धारण करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि उन्होंने क्या कहा है। जैसे मैं आपको एक आम दे दूं और आपको कहूं कि आप अपनी टोपली में डाल दीजिए, तो अगर आप अपनी टोपली लाएंगे, आम डाल देंगे, तो आम उसमें पड़ा ही है और आप चल दिएंगे थैली में डालकर, तो थैली में डाला हुआ आम वही है, आपने आम को धारण किया हुआ है। आपको जब खाना है तब घर पे जाकर उसको काट के खाएंगे। तो वैसे ही जो ज्ञान सामने वाले ने बोला है उसको धारण करना, हृदय में धारण किए रखना। उसके बाद आता है आपको उनका जो प्रस्ताव है या सुझाव है उसके फेवर में, उसके साथ बैठकर वही प्रस्ताव के उसमें उस भाग में रहकर उसको उसके तर्क करना।
आप उनसे सहमत हो, ऐसा आपको तर्क करना आना चाहिए। अगर आप किसी मीटिंग में हैं, अगर आपके साथ में कोई है और उसने कोई प्रस्ताव रखा है, तो अगर आपको वो प्रस्ताव को और शक्तिशाली बनाना है, मजबूत बनाना है, तो आपको भी अपना भाव प्रकट करना है, तो आप उस प्रस्ताव के लिए तर्क करेंगे सामने वाले के सामने कि ये प्रस्ताव सही में अच्छा है, ये इसमें आप सभी का लाभ है। तो वह प्रस्ताव के लिए तर्क करना, वह एक गुण है। उसके बाद है कि प्रस्ताव या सुझाव के विरुद्ध तर्क करना। अगर आप 2 ही जन हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप अपने मित्र से बात कर रहे हैं, उसने कोई प्रस्ताव रखा, सुझाव रखा कि ऐसा-ऐसा होना चाहिए, राजनीति या समाज में ऐसा होना चाहिए, तो आपको अगर प्रत्युत्तर देना है, सुनने के बाद, तो आपको वह तर्क आना चाहिए कि आपने उनका जो सुझाव है, उसके उसके ऑपोज़िट रह के आपको तर्क करना है, उसके विरुद्ध आपकी जो पोज़ीशन है वो विरुद्ध है, तो उसको आप कैसे तर्क करेंगे? तो वो तर्क आपको आना चाहिए। उसके बाद है आपको उनका जो इनसाइट है, उनका उनका जो कहने का सूक्ष्म भावार्थ है, भाव, वो समझने का ज्ञान आप में होना चाहिए। तो इसमें अगर देखा जाए तो बहुत जन संकेत में कहते हैं, बहुत जन डायरेक्टली नहीं कहते हैं, प्रत्यक्ष कि अगर समझो अगर मैं किसी के मेरे किसी मेहमान के घर पे जा रहा हूँ, किसी अतिथि के घर पे मैं रुका हूँ और रात रुकने वाला हूँ और अगर मेरी ये आदत है कि मैं शाम को बहुत कम खाता हूँ या फिर दूध ही लेता हूँ और अमुक-अमुक समय तक ही खाता हूँ, उसके बाद मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि भई मैं 6-7 बजे के बाद मैं ना खाऊँ। भले 11 बजे सोऊँ मगर 7 बजे के बाद मैं ना खाऊँ, तो मैं उनको अगर मैं एक अतिथि हूँ, तो मेरी भी एक शोभा है। मैं उनको जाकर ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकता कि भई मुझे 7 बजे के पहले खाना दे देना या मुझे केवल दूध ही देना। मैं केवल बातों-बातों में मैं ऐसा करूँगा कहूँगा कि हम सभी के लिए अच्छा है कि हम सूर्य अस्त होने से पहले अगर थोड़ा-सा अल्प आहार ले लें, छोटा-सा भोजन कर लें, बहुत भारी ना हो, पचने में सरल हो, ऐसा भोजन कर लें, तो हम सबके लिए बहुत अच्छा है। या तो केवल और केवल अगर सुबह बहुत खाया है, तो शाम को अगर आप दूध हल्दी वाला भी ले लें, तो भी पेट भर जाएगा, तो बहुत ही अच्छा है। मेरा ये मानना है। अगर मैं ऐसे कहूँ तो सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि मैंने उनको ये कहा है, सभी के दृष्टिकोण से कहा है, मगर मेरा अगर ये भाव है तो उनको ऐसा समझ में आना चाहिए कि नहीं, कदाचित इनको 7 बजे के पहले मुझे कुछ दे देना चाहिए या तो ये ऐसा ही माँग रहे हैं कि मुझे केवल दूध देना। तो फिर मैं अगर उनके सामने वाले की जगह होता तो मैं उनको पूछता, आपको अल्पाहार में क्या चाहिए? आप 7 बजे के पहले आप थोड़ा ले लो या आपको दूध चाहिए तो दूध दे दूँ। तो संकेत में हम बात करते हैं बहुत बार, तो वो संकेत को समझना और सामने वाले के भावों को समझना वो बहुत ही कठिन है और वो एक बहुत बड़ा गुण है बुद्धिमत्ता की प्रदर्शित करने को। और अंतिम जो इसका 8th फॉर्म ऑफ वर्च्यू ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूट्स इंटेलिजेंस वो है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान इज़ ट्रू विज़डम कि आपको ये पूरा सातों सात में और आठों आठ में आपको क्या आपके अगर किसी के साथ संवाद करते हैं तो एक तो होता है कि संवाद जो किया है सामने वाले का प्रस्ताव, सामने वाले का सुझाव या तर्क आपको एक पता है, वो एक आपको एक हो गया, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट होता है कि संपूर्ण ज्ञान माने अगर सामने वाले ने ऐसा कहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है? और एक है या अधिक कारण है, एक से अधिक कारण है, तो कितने कारण हैं? क्या-क्या अगर ये सामने वाला ऐसा कह रहा है कि मुझे तो विवाह से कोई आजकल के लड़के कहते हैं कि मुझे तो विवाह से अभी विश्वास ही उठ गया है। तो इनका भाव क्या है? इनके पीछे क्या इनके साथ ऐसी घटना घटी है? इनके साथ या इनके मित्रों में, इनके घर में ऐसी कोई घटना घटी है जिनसे ये प्रभावित होकर ऐसा कुछ कह रहे हैं? तो इनके जो सामने वाले के जो प्रस्ताव, सुझाव या तर्क होते हैं, उसके पीछे के भाव को समझना, वो एक तत्व ज्ञान में आ जाता है और पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज जो हमें प्राप्त होना होता है, वो 8वां गुण कहा जाता है, व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करता है कि ये 8 प्रकार के गुण हैं, इसके माध्यम से ही हम
किसी को कह सकते हैं, या हम अपने आप का भी आकलन अगर कर सकते हैं, तो हम ये निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि भाई मैं ज्ञानी हूं कि नहीं, मेरी बुद्धिमत्ता कितनी है। पहले तो मैं तो ऐसा ही करता हूं कि मैं अपना स्वयं का ही करता हूं कि मैं इसमें कहाँ हूं। फिर हम दूसरे पर हम ऑब्जर्वेशन करें कि भाई क्या क्या है, हमारे घर वाले या बाहर वाले, फिर हम देखें कि भाई ये कहाँ पर है, संवाद के माध्यम से ये कहाँ तक पहुंच पाते हैं, और हमें क्या पता चल रहा है कि ये कितने ज्ञानी है, अल्प ज्ञानी है या बहुत अधिक ज्ञानी है, या बीच वाले है या मध्यम ज्ञानी है, जो भी है। तो ये 8 प्रकार के गुण से हमें ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है, हमें प्रदर्शन दिखता है कि भाई ये सही में ये पुरुष ज्ञानी है, क्योंकि ये 8 प्रकार के गुण इसमें है। ये तर्क भी कर सकता है, अपने जो प्रस्ताव के लिए भी तर्क कर सकता है, विरुद्ध प्रस्ताव के लिए भी तर्क कर सकता है। तो दोनों का ज्ञान है, दोनों एक्सट्रीम का ज्ञान है, दोनों राइट और लेफ्ट, दोनों जो सेक्रेड और प्रोफेन, दोनों का इसमें ज्ञान है। धर्म अधर्म की सीमा का भी ज्ञान है, बीच का भी ज्ञान है। तो वो ज्ञान को संपूर्ण ज्ञान कहेंगे। तो ये सुंदर ऑब्जर्वेशन जो हनुमान ने अंगद के भीतर देखा, वो मैंने आपको बताया है। तो ये 8 प्रकार के गुण जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि हम में और दूसरों में कितनी बुद्धिमत्ता है, कितना ज्ञान है, अच्छा है, बुरा है, कम है, अधिक है, मध्यम वर्ग का है, ये सब हमें पता चलता है। ऐसे अगर आपको वीडियोस पसंद है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मगर गोवर्धन मठ नाम की एक चैनल है जिसमें यूट्यूब में ही है, उसको आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको ये तो छोटा सा ज्ञान, बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान आपको उसमें मिलेगा। अगर आप उसको 1 महीने भी सुनेंगे धीरे धीरे, उसके लिए आपको अपना फाउंडेशन बहुत तैयार तगड़ा रखना पड़ेगा, बहुत ही आधार, थोड़ा आपको धर्म का थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए, फिर उनके शब्द आप सुन पाएंगे। तो आप थोड़ा से शास्त्र पढ़ेंगे, साथ में उनको सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उनकी ज्ञान का स्तर कितना है। तो आप उसको अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। आई एंड अप हियर। थैंक यू वेरी मच। शिव शंकर प्रलयंकर।